Assalamu alaikum students, how are you all? Am I audible, guys? Can you hear me? वो बाद में करूंगी, ये तो वैसे ही था। Okay, so Bismillahirrahmanirrahim. If I'm audible, we are going to start our class without wasting any further time. So this is your session 9. Okay, 9 session have passed and we have only 6 more sessions left. So in these sessions, we are going to cover the remaining syllabus, and in the last two classes, we are going to do the assessments. Okay. So in the past few sessions, we have talked about how to talk about past, right? In the previous session, if you remember, before the assessment session, that was skipped because you guys did not participate in the class. So in this session, we are going to talk about future. How to talk about the future. In the previous session, we talked about past, right? How to talk about past. Which form do we use? Do you remember which form did we use? Which form of verb did we use when we are talking about past? Yes, Seeraj second. And what is the form that is used with did? Yes, Seeraj, with did past first form is used very well. Thank you so much for participating in the class, even if it's on text, it still matters. So, talking about future. In the previous session, we talked about past, and in the first few classes, we talked about how to talk about present, how to do the greeting, how to tell the time. That was all about present. So now we have done the practice of past as well. Today we are going to start the practice of future. It includes discussing future plans, predictions, and scheduled events is essential in personal and professional context. Definitely, all the sessions are going to be, for example, if you have to talk about creating the schedule of something, it is definitely going to be in future. If you have to predict something, it is about future. If you have to make a plan, it is about future. So all the things include future plans as well, right? So talking about future is very essential when we are talking about the spoken. Moving on to the next slide, the first slide we have is advanced use of future forms. In future, for example, in past, we talked about that we use did and we use second form. Likewise, in future, we have these three things. Read the slide in 2 minutes. Okay, so we have three advanced uses of future forms. First of all, will, spontaneous decisions, promises, predictions. We are going to talk about the examples of these as well. Okay, when you are making an instant decision, spontaneous decision. Okay, and when you are doing a promise, हम जब इसकी एग्जाम्पल देखेंगे तो हमें इसका पता लगेगा कि ये कैसे है. Second is going to. Okay, going to is when you have to do planned decisions, not the spontaneous decisions, and when you have to tell about intentions. Okay, third one is present continuous. We're going to talk about the form of verb that is used in this as well. It is used for fixed future arrangements. फर्स्ट वन अगर हम देखें विल पे, तो वहां पे स्पॉन्टेनियस स्पॉन्टेनियस होता है इंस्टेंट डिसीजन. ठीक है, मौके पे कोई आप डिसीजन लेते हो और आप कहते हो कि जी ठीक है ये हो जाएगा, हम आ जाएंगे. गोइंग टू क्या होता है, जब आपने प्लान करना हो कि मैं इस बारे सोचूंगा, ठीक है, मैं करूंगा कुछ ऐसा. और प्रेजेंट कंटिन्यूस क्या होता है कि मैं ऐसा करने वाला हूँ. ठीक है,
प्रेजेंट कंटिन्यूअस की ये एग्जांपल होती है कि मैं ऐसा करने वाला हूँ। अब हम देखते हैं कि हमने इसकी हमने कैसे एग्जांपल क्या है और हमने इसको किस तरह से यूज करना है। ठीक है, करने वाला हूं का मतलब यही होगा ना कि कोई चीज फिक्स्ड है, आपकी फ्यूचर की अरेंजमेंट सारी हो चुकी है, अब आप उसके बारे में बहुत ज्यादा श्योर है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इन एकेडमिक एंड नर्सिंग कॉन्टेक्स्ट, आज के टॉपिक में ना मैंने एक डिपार्टमेंट को ऐड किया, नर्सिंग को। ठीक है, अब अगर आप इसके बारे में सोचें तो आजकल जो है ना नर्सिंग डिपार्टमेंट के बारे में बड़ी ज्यादा जैसे कहते हैं एडवर्टाइजमेंट्स बहुत ज्यादा हो रही हैं। और ये थोड़ा हटके डिपार्टमेंट मुझे लगा था, आईटी बहुत ज्यादा मार्केट में है, फॉर्म डी है, डॉक्टर्स है, इंजीनियर्स हैं, इन सब के बारे में हर कोई बात करता है। एक चीज है जिसके बारे में हम नहीं बात करते हैं बहुत ज्यादा, दैट इज नर्सिंग डिपार्टमेंट। ठीक है, तो अब हमने इसको क्यों इंक्लूड किया है, क्योंकि आपको इसके बारे में सोचना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि इस डिपार्टमेंट के साथ हमारी नाव बहुत कम है, हमारी सिर्फ एक जिसे कहते हैं ना स्टीरियोटिपिकल सी एक हमारे पास पॉइंट ऑफ व्यू है नर्सिंग का, कि हाँ जी हम हॉस्पिटल में जाते हैं, वहां पे 2-3 नर्सें बैठी होती हैं जिनका कोई चीखने के अलावा जिनके पास कोई काम नहीं होता है। ठीक है, सिर्फ हमें ये आइडिया है नर्सिंग के बारे में, लेकिन नर्सिंग इज अ वेरी वास्ट डिपार्टमेंट। अब हमने इसकी एग्जाम्पल ऐड की है ताकि आप लोगों को इसके बारे में थोड़ा सा सोचना पड़े, जो स्टीरियोटिपिकल आइडियाज हमारे पास हैं हम उनसे हट के कोई बात करें। तो आवर टीम विल एनालाइज द डेटा नेक्स्ट सेमेस्टर। अब ये देखिए पहली जो एग्जांपल है हमारे पास, हमने यहाँ पे बात की थी विल की, तो अब यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल आती है, आवर टीम विल एनालाइज द डेटा नेक्स्ट सेमेस्टर। ओके, सो आवर टीम विल एनालाइज द डेटा नेक्स्ट सेमेस्टर। अब ये देखिए प्रॉमिस है। ठीक है, प्रॉमिस हो गया यहाँ पे कि हमारी टीम जो है ये नेक्स्ट सेमेस्टर में डेटा एनालाइज करेगी। ठीक है, अगली अगर आप एग्जांपल देखें, आई एम गोइंग टू अप्लाई फॉर द रेजिडेंसी प्रोग्राम। पीछे हमने बात की थी कि गोइंग टू यूज होता है प्लान डिसीजंस में। ठीक है, प्लान डिसीजंस में ऐसे डिसीजंस जो हमने ऑलरेडी प्लान किए हो। अब अगर आपने कहीं पे अप्लाई करना होता है तो उस एप्लीकेशन के लिए आप प्रॉपर प्लान करते हैं। ठीक है, तो आई एम गोइंग टू, ये आई एम गोइंग टू अब क्या है, ये सेकेंड एग्जाम्पल। ठीक है, थर्ड एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, द डिपार्टमेंट इज होस्टिंग अ सेमिनार ऑन पेशेंट सेफ्टी नेक्स्ट वीक। अब आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ये आ गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारे पास होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ठीक है, इसमें अब क्या होता है कि जो फिक्स्ड हमारे पास एक प्लान होता है, हमने फ्यूचर की कोई अरेंजमेंट की होती है जो ऑलरेडी फिक्स्ड है, कि जी इस तारीख पे हम एक सेमिनार करेंगे, इस तारीख पे हम कोई फंक्शन कर रहे हैं। ठीक है, उसके लिए यूज होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब हमारे पास जो 3 एग्जांपल्स है इसमें देखिए, फर्स्ट वन हमने विल पे यूज किया है, सेकंड वन में हमने गोइंग टू यूज किया है, और थर्ड वन में हमने जो हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूअस का फॉर्मूला है वो यूज किया है, इज एम आर प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। द डिपार्टमेंट इज होस्टिंग, होस्ट, होस्टेड, होस्टेड, एंड द फोर्थ फॉर्म इज होस्टिंग। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने आईएनजी लगा दिया है। ये तीनों चीजें आपने अपने जहन में रखनी है कि जब भी आप ऐसी कोई बात करेंगे कि जिसपे आप कहेंगे कि अभी मेरा इतना कोई खास प्लान तो नहीं है, पर चलो देखेंगे इस बारे में, वहां पे आपने यूज करना है विल। ठीक है, जहां पे आपका प्रॉपर प्लान हो कुछ ऐसा करने का तो वहां पे आपने करना है आई एम गोइंग टू। ठीक है, जो कंफर्म होता है। उसके बाद कोई ऐसा प्लान, जब आपने कोई इवेंट वगैरह प्लान करना होता है ना, तो फिर आप प्रेजेंट कंटिन्यूस यूज करते हैं। ठीक है, अगर मैं आपसे कहती हूँ कि आप अपनी नेक्स्ट क्लास में प्रेजेंट करें, तो आप कहेंगे आई विल प्रेजेंट। अब आपका इसमें आप कह रहे हैं अच्छा ठीक है मैं कर दूंगा, आई एम गोइंग टू प्रेजेंट, उसमें मुझे श्योर है कि और कोई करे ना करे आप जरूर करेंगे। उसके बाद आई एम प्लानिंग या आई एम प्रेजेंटिंग इन द नेक्स्ट क्लास, या आपने प्रॉपर अरेंजमेंट की हुई है, आप मुझे इन्फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप फर्स्ट रो में देखेंगे ना, तो उसमें आप मुझे अपने आइडिया के बारे में बता रहे हैं कि मेरे में ये कॉन्फिडेंस है या मेरे में ये बात है। जो थर्ड है ना, उसमें आप मुझे प्लान के बारे में बता रहे हैं कि मैम यू डू नॉट नीड टू प्रेजेंट, आई एम प्रेजेंटिंग इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, मुझे पता लग जाएगा कि जी ऐसे ऐसे अरेंजमेंट है, तो मैंने उसके मुताबिक चलना है। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब कॉमन मिस्टेक्स क्या होती है, यूजिंग विल फॉर डिसाइडेड प्लान्स। हमने पहले बात की है कि डिसाइडेड, जो प्रॉपर डिसाइडेड प्लान्स होते हैं उसमें हम विल यूज नहीं करते हैं, विल आता है वहां पे जो डिसाइडेड प्लान्स नहीं होते। ठीक है,
अब देखें यहाँ पे, अगर हम देखें इनकरेक्ट हमारे पास आएगा, आई विल विजिट द हॉस्पिटल टुमारो। ठीक है, कैसे, प्रॉपर प्लान है। यहाँ पे आप विल नहीं लगा सकते, यहाँ पे आप लगाएंगे आई एम गोइंग टू विजिट द हॉस्पिटल टुमारो, कि मैं कल जा रहा हूँ विजिट करने के लिए। अगर आता ना आई विल विजिट द हॉस्पिटल टुमारो, ये बात ही कच्ची है। ठीक है, तो जब आपके पास मतलब आपका 50-50 प्लान हो ना, तो फिर आपने विल लगाना है, फिर आपने गोइंग टू नहीं लगाना है। जब आप श्योर होते हैं ना किसी चीज के बारे में, फिर आपने लगाना है गोइंग टू। अब अगर आप देखें दूसरा, फॉर गेटिंग कंटिन्यूस फॉर स्केड्यूल्स, आई गो टू लाहौर नेक्स्ट मंथ, गलत है। ठीक है, आई गो कहाँ पे आता है कि मैं जाता हूँ, और उसमें कभी भी नहीं आता नेक्स्ट मंथ, फिर वो ये होता है कि आई गो टू लाहौर, कि मैं लाहौर जाता हूँ। लेकिन अगर फ्यूचर की बात करनी है तो आई एम गोइंग टू लाहौर नेक्स्ट मंथ, मैं अगले महीने लाहौर जा रहा हूँ। यहाँ पे आपने कंटिन्यूस नहीं बोलना है। स्केड्यूल जब भी आपने किसी चीज का करना है, तो उसमें आपने प्रेजेंट कंटिन्यूस यूज करना है। ओके, ओके, समझ आ गई यहाँ तक आप लोगों को? किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें काइंडली। अब यहाँ पे आप देखें, इंडिविजुअल राइटिंग प्रैक्टिस है, हमारे पास एक असाइनमेंट है, उसके अंदर आपने क्या करना है कि आपने एक शॉर्ट फॉर्मल पैराग्राफ लिखना है। फॉर्मल और इनफॉर्मल क्या है, हमने बात बिल्कुल स्टार्ट पे की हुई है, कि फॉर्मल वो होता है कि जो हम किसी प्रॉपर एकेडमिक पर्पस के लिए यूज कर रहे होते हैं, और इनफॉर्मल वो वाला होता है कि जो फ्रेंड्स आपस में कर रहे होते हैं। ठीक है, यहाँ जो दो कुलीग्स के दरमियान होते हैं, या जो उनके दरमियान होता है जिनके दरमियान हमारी कोई बाउंड्री नहीं होती है। तो आपने एक शॉर्ट पैराग्राफ लिखना है, एक फॉर्मल पैराग्राफ, 5 से 6 सेंटेंसेस का आपने लिखना है अपने फ्यूचर प्लान के बारे में। नर्सिंग में कर लें या एजुकेशन डिपार्टमेंट में कर लें, किसी भी चीज के बारे में आपने उसमें एटलीस्ट 2 गोइंग टू सेंटेंस करने हैं, मीन्स कि आपके क्या प्लान्स उसके बारे में, जो आपके प्रॉपर प्लान है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम गोइंग टू डू वर्क इन दिस डिपार्टमेंट। ओके, ये आपका प्रॉपर प्लान है। आई एम गोइंग टू अप्लाई फॉर एडमिशन इन दिस डिपार्टमेंट, एंड आफ्टर दैट आई एम गोइंग टू टेक एडमिशन इन दिस सर्टन यूनिवर्सिटी। ओके, अब ये आपके दो प्रॉपर प्लान्स है। अब उसके लिए अगर आप देखें तो आप इसमें विल कैसे यूज कर सकते हैं, कि आई विल स्टडी फ्रॉम डिफरेंट वेबसाइट्स। आपको नहीं पता कौन सी वेबसाइट से आप क्या पढ़ने वाले हैं, आप श्योर नहीं है इसके बारे में, आपके पास प्रॉपर प्लान नहीं है, तो इसमें आप कहेंगे कि आई विल स्टडी फ्रॉम दीज टू प्रोफाइल्स और दीज टू वेबसाइट्स। लेकिन अगर आप श्योर हो कि आई एम गोइंग टू स्टडी फ्रॉम विकीपीडिया, लेट सपोज, तो वहां पे आपने करना है गोइंग टू। जहां पे आपके पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हो, प्रॉपर प्लान हो, उसमें आपने लगाना है गोइंग टू। फिर उसके बाद आपने कोई से दो प्रेजेंट कंटिन्यूस सेंटेंसेस इस्तेमाल करना है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम टेकिंग एडमिशन इन यूनिवर्सिटी इन कैलिफोर्निया, राइट? तो आपके पास अब आई एम टेकिंग एडमिशन, ठीक है, आपने एक अरेंजमेंट बनाया है कि आई एम सबमिटिंग माई एप्लीकेशन ऑन जुलाई 1992, लेट सपोज, वी आर फार बियॉन्ड दैट नाउ, बट लेट से आई एम गोइंग टू अप्लाई फॉर एडमिशन ऑन 26 अगस्त 2025। एम आ गया, राइट? तो इस तरह हमें पता लग जाएगा कि हमने प्रॉपर अरेंजमेंट कर लिया है। आई एम गोइंग टू पुट द असाइनमेंट इन द असाइनमेंट बॉक्स नेक्स्ट वीक। ओके, अब इसमें आप देखें कि आपके पास गोइंग टू भी आ रहा है, आपके पास प्रेजेंट कंटिन्यूस भी आ रहा है, तो आपको पता लग रहा है कि आपने अरेंजमेंट भी कर ली है और आपका प्रॉपर प्लान भी है। इंक्लूड वन प्रिडिक्शन यूजिंग विल, ये आपकी असाइनमेंट है जी। आपने ये काम करना है, आपने शॉर्ट फॉर्म में पैराग्राफ लिखना है जिसके अंदर आपने इन दोनों चीजों को ऐड करना है। किसी का अभी तक कोई क्वेश्चन है तो काइंडली पूछ लें। अगर कोई भी कंफ्यूजन है, अगर आप नहीं लिखना चाह रहे हैं, बोलना नहीं चाह रहे हैं, तो आप लिख के भी पूछ सकते हैं। तो ये आपका अभी तक का हमने पढ़ा है कि जी विल, गोइंग टू और प्रेजेंट कंटिन्यूअस। उसके बाद हमारे पास एक रिफ्लेक्शन टास्क, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है। किसी भी, आप कहीं भी किसी कंपनी में जॉब के लिए जाते हैं, आप कहीं भी जाते हैं, इवन अब तो आप किसी डिग्री के लिए एडमिशन लेने के लिए भी जाते हैं ना, तो वो भी आपसे पूछते हैं कि वेयर डू यू सी योर सेल्फ इन फ्यूचर, वेयर डू यू सी योर सेल्फ इन 5 years। अब आपने उसमें प्रिडिक्शंस भी करनी है, आपने उसमें प्लान्स भी बताने हैं, और आपने उसमें अरेंजमेंट भी बतानी है। ठीक है, ये रिफ्लेक्शन टास्क बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों के पास 2-3 मिनट है, आप लोग अभी अगर इसको इनबॉक्स में लिख दें, मुझे कोई 2-3 लाइंस लिख के दें, ताकि हम उसको पढ़ें और हम देखें कि आपने क्या, एक प्रिडिक्शन करें,
एक उसके अंदर प्लान बताएं और एक अरेंजमेंट बताएं। 3 लाइंस का आप मुझे बताएं कि वेयर डू यू सी योर सेल्फ in 5 years. Okay, this is your task for today for all of you. Kindly start it now. I'll be checking in 5 minutes. Okay, so without wasting any further time, because I never get responses. Okay, thank you so much. For Seerat, first of all, I will start my job in the next month. Okay, I am going to visit some school branches for interviews. Very good. I am searching some online sites to apply for a job. Okay, Seerat, thank you so much. Enver, I will quit the drugs that is going notorious for children's. Okay, very well. So you have used will.
So your reflection task is basically how do you see yourself in the next 5 years. Okay, this is your reflection task. If you have enough time at home, you can do it. Okay, kindly do it. क्योंकि जब तक आप लोग काम नहीं करेंगे ना, आप लोग इस कोर्स का कोई फायदा नहीं है आपको। आपने फीस पे कर दी है, ठीक है, अब आपने 15 क्लासेस ले लेनी है, ठीक है, उसके बाद फिर आपको कोई फायदा नहीं होगा। और उससे भी बड़ी बात, एक जो प्रॉब्लमेटिक बात मुझे इस कोर्स की बहुत ज्यादा लगती है वो यही है कि 40 मिनट की क्लास होती है, हफ्ते में 3 दिन क्लासेस होती हैं। 40 मिनट मुसलसल आके मैं बोलती रहती हूँ कंटिन्यूसली नॉन स्टॉप, एंड नो वन इज इवन पार्टिसिपेटिंग। इट जस्ट लाइक डोंट इवन केयर व्हाट दिस इज अबाउट। तो अगर आपको नहीं है ऐसा कोई, फिर अगर आपको कोई प्रॉब्लम है बोलते हुए, तो फिर आप लोग स्पोकन का कोर्स क्यों करने आए हैं? क्योंकि स्टार्टिंग में मैं सोचती थी कि मेरे पास थोड़े लाइवली स्टूडेंट्स हैं, दे आर गोइंग टू पार्टिसिपेट इन द क्लास एंड दे आर गोइंग टू ऐड इनटू द डिस्कशन दैट इज हैपनिंग इन द क्लास। बट इफ यू गाइस आर नॉट इवन पार्टिसिपेटिंग, सो देयर इज नो यूज ऑफ कमिंग इन द स्पोकन क्लास। Go join some writing classes, go join some online forums where you are not allowed to talk. So there is no mean. Okay, खैर, सेइंग समथिंग अगेन एंड अगेन, अगर आप बार बार कोई चीज कहेंगे तो इट लूजेस द मीनिंग। तो मुझे लगता है कि आई हैव लॉस्ट द मीनिंग्स। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड्स। होमवर्क असाइनमेंट, prepare a 200, okay. So why am I giving different reflection assignments and homework assignments? Why? Because you guys are not participating in the class. So at least the least you can do is take the screenshot, and in the upcoming life, in next 20 years, 10 years, someday open the slide and do the assignment, so that आपको 5 साल बाद भी कोई आइडिया हो तो आपको याद आए कि विल कहाँ पे लगाना है, गोइंग टू कहाँ पे लगाना है, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहाँ पे लगाना है। ठीक है, ये जो रूल्स है ना, ये हमें ना तो स्कूल में पढ़ाए जाते हैं इस तरह से। ठीक है, हमें सिर्फ बता दिया जाता है कि पास्ट कितनी टाइप्स हैं, प्रेजेंट कितनी है, फ्यूचर कितनी है, ये हमारे पास टेंसेज हैं, इनके ये फॉर्मूलाज हैं, इनको इस तरह से आपने बस चुप करके यूज कर लेना है। आपको नहीं बताया जाता है कि विल कहाँ पे लगाना है, आपको नहीं बताया जाता है कि गोइंग टू कहाँ पे लगाना है। आपको सिर्फ बता दिया कि फ्यूचर में विल लगा देना है। कब लगाना है? जब आपने कोई प्रिडिक्शन करनी है, आपने कोई प्रॉमिस करना है, कब लगाना है, आपने कोई प्लान करना है तो। ठीक है, तो ये जो छोटी छोटी पॉइंट्स होते हैं ना, ये लूप होल्स हैं हमारे इंग्लिश सिस्टम के। अगर आपको किसी भी फॉरम से मिल रहे हैं, किसी भी फॉरम से, मैं 40 मिनट में कोई एक बात भी तो ऐसी होगी जो इन्फॉर्मेटिव होगी, जो शायद आपको पहले ना पता हो, तो प्लीज बॉदर किया करें थोड़ा बहुत कि हम क्लास ले रहे हैं तो हमने उसके बारे में कुछ ना कुछ अपने दिमाग से निकालना है, कुछ ना कुछ हमने बोलना है, कुछ ना कुछ हमने बताना है लाजमी। ठीक है, थोड़ा बहुत ही सही, पर एटलीस्ट थोड़ा सा, जिसे कहते हैं ना, गिव अ डैम, start giving a damn about something. So ji, prepare a 200 word written response. How will technology impact patients? Thank you so much, Rahma. I will take admission in university to choose a medical field. Inshallah, inshallah, if you are destined to do it, you are definitely going to do it. So prepare a 200 word written response. How will technology impact patient care in the next 5 years? Use at least 3 future forms. Will, going to, present continuous. Provide realistic examples. ठीक है, तो ये भी आप एक काम कर सकते हैं, ये भी आप होमवर्क कर सकते हैं, ताकि आपको पता लगे, आपकी थोड़ी सी रिफ्लेक्शन हो। अच्छा, मैं आपको एक, ये सारी चीजें, रूल्स भी छोड़े, रेगुलेशंस भी छोड़े, ग्रामर भी छोड़े, स्पोकन इज ऑल अबाउट रिफ्लेक्शन। आपका किसी चीज को लेके क्या आइडिया है, क्या रिफ्लेक्शन है, स्पोकन उसी पे डिपेंड करती है। आप किसी चीज को लेके क्या सोचते हैं। ठीक है, जितना ज्यादा आप सोचेंगे, मैंने प्रीवियस क्लासेस में, इनिशियल क्लासेस में मैंने एक बात की थी कि आप अगर रिटर्न में कर रहे हैं ना, तो रिटर्न में क्या होता है कि एक इंसान आके आपको कुछ लिख के देता है, और आप उसके बारे में देखते हैं कि अच्छा ये क्या इसने लिख के दिया है, फिर आप उसके ऊपर थोड़ा बहुत सोचते हैं, फिर आप उसका आंसर करते हैं। स्पोकन में क्या होता है, कोई बंदा आके आपसे बात करता है, आपको इंस्टेंटली उसका जवाब देना पड़ता है। आपने सिर्फ अपने दिमाग की डेवलपमेंट करनी है। आप अपने दिमाग को जितना ज्यादा डेवलप करेंगे, उतनी ज्यादा आपकी स्पोकन इंप्रूव होगी। आप अपने दिमाग को डेवलप नहीं करेंगे तो आपकी स्पोकन नहीं आएगी। आप वहां पे बैठ के सोचते रहेंगे, अपने दिमाग में ट्रांसलेशन बनाते रहेंगे कि मैं इसको किस तरह से करूं। इसमें आपको टिप्स एंड ट्रिक्स दी गई थी कि जी टंग ट्विस्टर इस्तेमाल करें, अपने आप को रिकॉर्ड करें, रिकॉर्डिंग सुने, शीशे के आगे खड़े होकर बात करें, कोई एक टॉपिक चूज करें, उसको लिख लें पहले, फिर उसकी रीडिंग करें, रीडिंग आउट लाउड। ये सारी आपको टिप्स एंड ट्रिक्स दी गई हैं, उसके बावजूद भी देर इज नो पार्टिसिपेशन इन द क्लास। तो फिर आप लोग बता दें कि हम इस कोर्स को किस तरह से डेवलप करें। अच्छा, अगर फीडबैक नहीं दिया तो आपको फिर पिछली क्लास में मौका दिया था कि एक असेसमेंट आपको दी गई है, आप उस पे क्लास में आके प्रेजेंट करें। सीरत बेटा देखिए, रिटर्न का तो काम ही नहीं है। रिटर्न तो इस कोर्स का मोटिव ही नहीं है। इस कोर्स का मोटिव था स्पोकन। ठीक है,
स्पोकन का काम है, आप लोग उस पर काम करें। क्लास मैंने पिछली पूरी क्लास मैंने इस पे रखी थी कि आपके पास 40 मिनट्स हैं, आप लोगों को उसमें प्रेजेंट करना है। आप लोग प्रेजेंटेशन की तरफ आए नहीं गए हैं। आप लोग भूल क्यों गए कि हमारा रिटर्न का काम नहीं, हमारा स्पोकन का काम है। सीरत, आई ट्राई माई बेस्ट टू गिव द फीडबैक, पर अगर आप क्लास में मुझे इस तरह से रिमाइंड नहीं करवाएंगे मुझे तो भूल जाएगा। मैं एक दिन में 40 काम कर रही हूँ, मुझे उसमें कहाँ याद रहेगा सीरत ने मुझे कोई काम भेजा हुआ है जिसको मैंने उस पर फीडबैक देना है। ठीक है, तो काइंडली इस चीज को थोड़ा सा अवॉइड किया करें और क्लास में पार्टिसिपेट किया करें, क्लास में थोड़ा एक्टिव रहा करें। कोई ग्रामर क्विज है जी हमारे पास, आई डैश अटेंड अ वर्कशॉप नेक्स्ट वीक। इसमें अब आप देखें अरेंजमेंट है, स्केड्यूल है, प्रोटेक्शन है, क्या है। आई थिंक द पेशेंट्स कंडीशन डैश इम्प्रूव नेक्स्ट ईयर, आई डैश माई मास्टर्स डिग्री। इन तीनों में अब आपने कोई एक लगाना है, लगाएं, क्या लगाएंगे? इनमें कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होगा ये आप लोग जरा मुझे बताएं अभी इनबॉक्स में। आई विल, फर्स्ट वाला। ओके, आई विल attend a workshop next week. Okay. I am going to Sirat. And the second one, I think the patient's condition dash improve. Sirat is talking. Yes, ma'am. Second one, I think it will be well. Yes, Sirat, it will be will. And third one, next year, I dash. I think going to next year, I am going to start my master's degree. Yes. Okay, so in first sentence, you have scheduled something that is happening next week. So, I am attending a workshop next week. Present continuous. नेक्स्ट वन इज आई थिंक द पेशेंट कंडीशन विल इम्प्रूव। आप लोग प्रिडिक्शन कर रहे हैं, इट इज नॉट प्लान, कंफर्म नहीं है, तो इट इज विल इम्प्रूव। थर्ड वन इज आई एम गोइंग टू स्टार्ट माई मास्टर्स डिग्री। वाई? बिकॉज यू हैव मेड एन अरेंजमेंट, यू हैव अ प्रॉपर प्लान। ओके, तो अब आपको पता लग गया आपने इन तीनों को कैसे यूज करना है। Three predictions about your profession or studies use will. Example, nursing education will become more technology driven. Confirm नहीं है, ठीक है, there is a it will happen. Our hospital will adopt AI system soon. Okay, proper plan नहीं है. I will complete my specialization in 3 years. Okay. अब ये तीनों जो चीजें हैं इनमें आपको कंफर्मेशन नहीं है, आपका प्लान है, आप प्रिडिक्ट कर रहे हैं कैसा होगा, तो हमने इन तीनों में विल लगाया है। गॉट इट? अब आप देखिए, अब आपकी इंटेंशन है कुछ करने की, तो आई एम गोइंग टू एनरोल इन रिसर्च कोर्स। अब अगर आप देखें तो पिछले यहाँ पे आई विल कंप्लीट माई स्पेशलाइजेशन इन 3 years, ठीक है, लेकिन इट कैन बी फर्दर एज वेल, इट कैन गो फर्दर। आपकी 4 साल में भी हो सकती है, 5 साल में भी हो सकती है, ठीक है। तो इसमें आपको कंफर्मेशन नहीं थी तो आपने विल किया, लेकिन अब आपको कंफर्मेशन है कि आप इनरोल करेंगे रिसर्च कोर्स के लिए। उसमें ऐसे नहीं हो सकता कि आप इस साल करना शुरू करें और आपके 2 साल लग जाएं। आपको पता है कि आप इनरोल करेंगे, आप कर लेंगे, तो दैट इज योर इंटेंशन, आपका इरादा है, तो आप गोइंग टू। सेकंड पे भी आई एम गोइंग टू इम्प्रूव माई मेडिकल टर्मिनोलॉजी, आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ हेल्थ अवेयरनेस कैंपेन। इन तीनों में आपका प्रॉपर इरादा है, तो इस वजह से आपने यहाँ पे गोइंग टू लगाया है। थर्ड वन इज फिक्स फ्यूचर, आपने स्केड्यूल किया हुआ था, आई एम अटेंडिंग अ वर्कशॉप नेक्स्ट फ्राइडे, आई एम मीटिंग माई सुपरवाइजर टुमारो, वी आर होस्टिंग अ सेमिनार नेक्स्ट मंथ। So role play, formal future plans, prepare to present your 5-year career plan, use at least I will, I going to, I present continuous. Prompt, good afternoon, over the next 5 years, I will do what, यहाँ पे आपने अपनी तरफ से लगाना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आप लोगों ने जो भी अपनी प्रेडिक्शन करनी है, जो भी अपना फ्यूचर प्लान बनाना है, उसको इस प्रॉम्प्ट के अंदर, इस आपको एक हमने दे दिया है, एक प्रॉम्प्ट दिया है आपको, आपको हमने एक दे दिया है जिसे कहते हैं फॉर्मेट दे दिया है, इसके अंदर अब आपने लगाना है अपने फ्यूचर प्लान को। आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से लगाते हैं। तो शॉर्ट प्रॉम्प्ट फॉर स्पीकिंग, ये अब आप देखिए, कंप्लीट एंड स्पीक अलाउड इन द नेक्स्ट 10 years नर्सिंग विल, प्रिडिक्शन है। आफ्टर दिस डिग्री आई एम गोइंग टू, आपकी इंटेंशन है कि आप क्या करेंगे। नेक्स्ट मंथ, जहां पे भी आ जाएगा, अगला महीना, अगला हफ्ता, हमें पता लग गया कोई स्केड्यूल है, तो वहां पे आएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस। या एडवांस स्पोकन असाइनमेंट भी हो सकती है जी। फिर से वही बात, हाउ डू यू सी योर सेल्फ इन 5 years।
That was all for today. If there are any questions, kindly ask. We have 3 more minutes in this meeting left. So if you have any questions, you can ask right now. If no, then we are going to end this meeting. I hope you have gotten the screenshots of the assignment. If you want to do it, well and good. If you do not want to do, it's up to you. Still well and good. I am not going to be indebted for that. It is completely your debt that you are passing to yourself. Okay? So any questions, any confusion, you can ask. We have 2 more minutes. No, ma'am. Okay, very well. Thank you so much for participating in the class. Okay. See you guys in Okay. the in next week on Monday, inshallah, with a new topic. So that's all for today. Best of luck. Allah Hafiz. Allah Hafiz.